Hi everyone. Lastly, I discussed about MTP, STD, RTI. Few points I skipped that time because the video was getting longer, so I'll continue from there. Complication of these RTIs or STD, the most common complication in females is the cancer or abortion. And one major thing which is common but the females remain undetected and they have no idea that they are getting affected by this, that is PID, pelvic inflammatory disease. So pelvic inflammatory disease occur due to the bacteria, but due to the other infection also they get affected by this. There is no such symptom in the pelvic inflammatory disease or PID. Only they feel pain, weakness, tiredness during that time, and due to the awareness and education, that can be treated. These can be prevented by some awareness or using some preventions. First of all, avoid sex with unknown partner or multiple partners. Always use condoms during the copulation, and in case of doubt, go to a qualified doctor, not just a normal jhola chhap one. The last topic is infertility. So, how we'll define the infertility? Actually, in our country, not in our country, overall the world, a large number of male and female are infertile. Infertile means, in spite of having unprotected sexual activity, they are not able to conceive, they're not able to become parent, and that is called infertility. And there are different reasons for the infertility. Earlier, the females were blamed for infertility, but science has revealed that it is not the females who are responsible for the infertility. Infertility may occur due to, infertility occur in both male and female. So, what are the causes? Firstly, we'll discuss infertility in male and then in female. So, in male, it occurs due to the production of unhealthy sperms or due to azoospermia or oligospermia. Oligo and azoospermia I already discussed earlier. Or if the male is having any genetic disease like cystic fibrosis or their sperm duct is blocked. These are the certain reasons due to which the males are infertile. In females, the infertility occurs due to the ovulation disorder, that means irregular ovulation and blocked fallopian tube. In case of cystic fibrosis, like uterine fibroids and pulmonary pelvic inflammatory disease or PID. ये रीजंस थे मेल एंड फीमेल में सेपरेट इनफर्टाइल होने के, बट कुछ ऐसे कॉमन रीजंस हैं जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस. आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है, स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर एंड सच थिंग्स, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, दे इफेक्ट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल. आजकल मेल ही नहीं, फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स एंड अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, एंड दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी इन देम. So biology has offered them to become biological parents. टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं जो हेल्प करती हैं ऐसे इनफर्टाइल कपल्स को टू हैव देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, एंड दीज टेक्नोलॉजीज टुगेदर आर कॉल्ड आर्ट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. In this, the first technology is IVF, that's called in vitro fertilization. So in vitro fertilization कहाँ पे applicable है, किस टर्म में हम यूज़ करते हैं? सो IVF का यूज़ होता है उस केस में जहाँ फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और इनमें फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट ही नहीं है, एंड मेंस में लो स्पर्म काउंट है. सो इन दिस मैथड IVF हेल्प देम टू हैव देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड. सो इस मैथड में होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय सर्जिकल मैथड, egg from the female is removed outside of the ovary and sperm of the male is taken out, and इन दोनों को मिक्स करके रख दिया जाता है इन अ पेट्री डिश, एंड उस पेट्री डिश में एक प्रॉपर स्टिमुलेटेड कंडीशन मेंटेन की जाती है इनसाइड द लेबोरेटरीज, एंड आफ्टर 40 आवर्स इसको एग्जामिन किया जाता है इफ़ दे हैव फ्यूज्ड, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ देन ये एम्ब्रियो या जाइगोट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मदर की बॉडी में. बट जब एम्ब्रियो या जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे दो कंडीशन है ट्रांसफ़र करने की. इफ़ द जाइगोट इज़ इन 8 सेल्ड स्टेज, सो हमें मालूम है कि 8 से 16 सेल्ड स्टेज में डिवाइड होते हुए ये यूटरस तक पहुँचता है नॉर्मल सिचुएशन में. सो अगर एम्ब्रियो 8 सेल्ड स्टेज में है,
सो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में एंड इस टेक्निक को हम कहते हैं जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट में ट्रांसफ़र किया जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफ़र होगा एंड अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 सेल्ड स्टेज है या 16 सेल्ड स्टेज में है, सो वी नो दैट कि 16 सेल्ड स्टेज में ये यूटरस वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। सो उस टेक्निक इस केस में इफ़ इट इज़ मोर देन 8 सेल्ड स्टेज और इट इज़ एट द 16 to 32 सेल्ड स्टेज, सो हम इसको यूटरस में ट्रांसफ़र करते हैं एंड दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र, दैट इज़ IUT। फर्दर डेवलपमेंट यूटरस में होता है। सो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में तब ट्रांसफ़र करेंगे जब व्हेन इट इज़ अंडर 8 सेल्ड स्टेज, बिकॉज तब डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में ही होता है नॉर्मल केस में। एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 8 सेल्ड स्टेज 16 to 32, देन इसको हम यूटरस में ट्रांसफ़र करेंगे बिकॉज एट दिस स्टेज ये इम्प्लांट हो जाता है। सो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा बिटवीन ZIFT and IUT. So this IVF technique is also called test tube, या ऐसे बेबीज़ को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। एंड टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ड या बहुत ही मिसनॉमर वर्ड है। मिसनॉमर का मतलब होता है मिसलीडिंग। टेस्ट ट्यूब वर्ड सुनते ही दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक करता है कि बेबी कम्प्लीटली एक ट्यूब में डेवलप होगा। नो, सिर्फ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है, ट्यूब में या पेट्री डिश में कराया जाता है। रेस्ट जो डेवलपमेंट होता है बेबी का वो इनसाइड द मदर बॉडी ही होता है। अब ये डिपेंड करता है इफ़ द मदर इज़ एबल टू कंसीव, मदर की बॉडी या उसकी यूटरस रेडी है, देन बेबी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मदर की बॉडी में। एंड अगर मदर इज़ नॉट कैपेबल, वो कंसीव नहीं कर सकती हैं फर्दर प्रोसेस को, देन उसके लिए सरोगेसी ऑप्शन भी अवेलेबल है। सरोगेसी में सरोगेट मदर्स होती हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो फॉर 9 मंथ बेबी को सिर्फ डेवलप करने के लिए अपनी बॉडी में रखती हैं अपने यूटरस में। एंड एक बार बेबी डिलीवर हुआ उस मदर का उस पर कोई क्लेम नहीं रहता है। So the first test tube baby was a sheep and its name was Dolly. And in 1978, two scientists, Steptoe and Edwards, they developed the first human test tube baby. And for that, they were awarded with Nobel Prize in 2010. 3rd October 1978, सुभाष मुखोपाध्याय, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने मिरेकल किया है, उन्होंने इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया। एंड उस वक्त उनकी इस अचीवमेंट को लोगों ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। बंगाल गवर्नमेंट ने तो उनको बैन कर दिया, वो अलाउड नहीं थे किसी भी सेमिनार में जाने के लिए, उनकी मेडिकल प्रैक्टिस तक बैन कर दी गई। एंड इन सब चीज़ों से कट आउट होकर, लेफ्ट आउट फील करके विद इन 3-4 ईयर्स सुभाष मुखोपाध्याय ने अपने ही घर पे सुसाइड कमिट कर लिया। उन्होंने एक मिरेकल किया था, एक अचीवमेंट थी वो हमारी कंट्री के लिए। वर्ल्ड का सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी बना था विद इन 3 मंथ, बट स्टिल उस टाइम उनकी इस अचीवमेंट को अप्रिशिएट नहीं किया गया। एंड जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी उन्होंने बनाया था, हर नेम वॉज दुर्गा, दैट टाइम उसको दुर्गा नाम दिया गया। अभी उस बेबी का नाम है कनुप्रिया। देन आफ्टर 6 month और 8 month, आई गेस 6 और 8 years, सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी बना एंड दैट वॉज हर्षा। सो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया थी एंड इनको बनाया था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने। नेक्स्ट मैथड इज ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो इस टेक्निक में एक सिंगल स्पर्म डायरेक्टली एग में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है टू फर्टिलाइज द एग। एंड एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन जाइगोट वापस से मदर की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग 2 सिचुएशन, जिफ्ट एंड IUT। द नेक्स्ट इज GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इन दिस टेक्निक जो एग्स होते हैं वो ओवरी से निकाल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं एंड देन मेल स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में रख दिया जाता है एंड देन इट इज़ अलाउड टू फर्टिलाइज। उनके फ्यूज़न का वेट किया जाता है, रेस्ट प्रोसेस नॉर्मली होती हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गैमीट, बिकॉज यहाँ पे गैमीट ट्रांसफ़र किया गया है।
मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों को बस उनके प्लेसेस से उठा के डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बाकी प्रोसेस सेम होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या डोनर मेथड भी यूज़फुल है। सी इन दिस केस इन वुमेन आर आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, वुमेन्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। स्पर्म उनके हस्बैंड का या किसी डोनर का डायरेक्टली उनकी बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाता है इनसाइड द यूटरस और वजाइना, एंड देन रेस्ट प्रोसेस नेचुरली या नॉर्मल होती है। अदर मैथड्स भी हैं टू हैव द चिल्ड्रंस लाइक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। आजकल की लाइफस्टाइल में कोई भी बहुत जल्दी पेरेंट नहीं बनना चाहता है, सबको अपने करियर की टेंशन होती है, सो अपना करियर बिल्डअप करने में लगे होते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है एंड बेबीज़ में अगर आप बहुत 35 अब 35 हो देन बेबीज़ हेल्दी प्रोड्यूस नहीं होते, सो फीमेल्स में एग फ्रीज करके रखे जा सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, एंड मेल्स में स्पर्म भी फ्रीज करके प्रिजर्व की जा सकती है, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन मैथड कहते हैं। इवन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। फ्रोजन एम्ब्रियो रखा जा सकता है फॉर द ट्रांसफ़र। डाइटरी सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्ट्रेस फ्री हेल्दी लाइफ। आप अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है, आप कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, देन एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, यू विल बी हेल्दी, एंड इफ़ यू आर हेल्दी you will be reproductively healthy. So this chapter is over here. Hope this video was helpful for you. Thank you.